We'll go to our last speaker right now, and that's on the overview of returns filing and the IT architecture for the GST. Our speaker is Dr. Gundavle Mangesh. Over 16 years experience in the VAT department of Government of Maharashtra. He's played key roles in the reform process for BST and VAT automation, organizational restructuring and preparation for GST. He's been awarded the trophy and certificate recognition for the contribution to GST in the month of Feb 2013. He's a member secretary of the GST Working Group of Maharashtra, Tier 2 member of the think tank of revenue augmentation, member of the delegation for a dialogue with the World Bank doing business team. He's represented India in international seminars and training program on taxation in Tokyo, Japan. He's a PhD from Pune Department of Economics, University of Pune, with the subject of impact of economic liberalization on industrial structure and performance, Indian experience in the year 2007. Please welcome Dr. Mangesh Manohar with a round of applause on the third part. Good evening. Normally we all go together in a bunch to take GST seminars because you can understand the subject is vast. And they always request me कि आप लंच के बाद वाला सेशन ले लो, क्योंकि क्या होता है थोड़ा टेक्निकल सेशन हो जाता है तो लंच के बाद अटेंड करना हेवी हो जाता है. दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल सेशन रिटर्न, क्योंकि सी आई कैन सी ऑन योर फेसेस नाउ यू हैव अंडरस्टूड जीएसटी क्या है, क्या इश्यूज आने वाले हैं, बट अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे जीएसटी में करना क्या है. सी अल्टीमेटली जब आप कोई कंप्लायंस करना है तो बेसिक 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. एक रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न है एंड पेमेंट है. बाकी तो आपका इंटरनल इन हाउस है, जो भी आपको कितना क्रेडिट क्लेम करना है नहीं करना है, जो भी दोज आर योर इंटरनल इश्यूज. बट आपको गवर्नमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन है दैट इज थ्रू योर रिटर्न्स, क्योंकि गवर्नमेंट और कुछ नहीं है. आप जो भी रिटर्न अपलोड करोगे उसी के बेसिस पे आपका सब जो भी स्क्रूटिनी होगा या जो भी आपका कैरेक्टर गिना जाएगा कैसा है वो सब इट विल बी ऑल थ्रू योर जीएसटी रिटर्न्स. सो व्हाट वी विल डू टुडे इज क्योंकि आई हैव ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, आपको मुझे खाने से थोड़ा भी आई नीड टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स. खाने के बाद नहीं, आज खाने के पहले सेशन है एंड आई हैव टू कीप यू अवे फ्रॉम दैट dinner for say another half an hour. So what I will do is I'll take say 5-6 slides ही मैं अभी लूँगा, क्योंकि there are plenty of slides. 5-6 slides में I'll explain you the return का situation कैसे, GST में returns कैसे भरने, क्या भरने, and I will navigate you through few slides which are nothing but screenshots of actual GSTN, क्योंकि GSTN का टेस्टिंग भी हम लोगों ने किया है. And as Khanande sir had told that Maharashtra was one of the pioneering states who has done this testing. अभी भी कुछ issues थे जो हमने उनको communicate किए हैं, उस पर काम चल रहा था, but we have done lot of testing. So I am sharing those screenshots with you so that you will just get a feel GST में क्या होगा, क्योंकि you are familiar with VAT department website, you are familiar with service tax, or you are familiar with excise department website, but GSTN क्या होगा, कैसे होगा, it's still a new thing. So I'll share those screenshots with you and then we'll go for a question answer session. अभी मेरा टाइम तो ऑलरेडी जा चुका है, so I'll take some time from question answers, क्योंकि काफ़ी सारे questions ऑलरेडी शायद शालिग्राम सर के लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल गए होंगे. जो भी होंगे हम लोग उसके बाद में ले लेंगे. जीएसटी में जैसे सर ने बताया कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर न्यू. अब सी रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न भरना, पेमेंट करना, दिस इज़ नथिंग न्यू टू यू. ये जब से आपने बिजनेस शुरू किया है तब से ये तो कर ही रहे. तो जीएसटी में अगर करना है तो क्या नया करना है, कैसे करना है, सो उसी पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे कि नया क्या है. सो नया अगर देखेंगे स्लाइड पे तो 4 या 5 चीज़ें हैं जो जीएसटी में नहीं है. फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन बेस्ड इनवॉइस लेवल डेटा जो एवरी रिटर्न के साथ कैप्चर होगा. वो कैसे होगा, क्या करेंगे, वो हम लोग देखेंगे. बट ये जो डेटा कैप्चर होगा रिटर्न में, वो रिटर्न का जो डेटा है उसका मैचिंग और मिसमैचिंग होगा. जो मैचिंग होगा उसके हिसाब से अगर आपका कुछ गलती है तो ऑटो रिवर्सल होगा, ऑटो पॉपुलेशन होगा. ये सब नया है, क्योंकि आप अभी जो हम लोग रिटर्न भरते हैं तो आपको सब इन्फॉर्मेशन देनी है. ऑटो पॉपुलेशन उसमें कुछ नहीं है,
बट जीएसटी का आधे से ज़्यादा रिटर्न हाँ ऑटो पॉपुलेट होने वाला है। जब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे कि अरे GSTR 1 भरना है 10 तारीख को, 15 को एक भरना है, 20 को एक भरना है, बट उसमें इशू ऐसा है कि आपको तो एक ही भरना है, बाकी तो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। सो वो जो है वो कैसे होने वाला है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देन देर इज जो मेनी ऑफ यू आर मैन्युफैक्चरर्स, तो आप PLA के बारे में कंसेप्ट तो जानते हो, बट GST में भी वैसे 3 लेजर्स है, एक टैक्स लेजर है, ITC लेजर है एंड पेमेंट लेजर है। तो वो लेजर कैसे काम करेंगे, उसका जो फंड होगा कैसे यूटिलाइज करना है, ITC का होगा या कैश का होगा, या टैक्स लायबिलिटी अगर है तो कैसे पे ऑफ करनी है, स्क्वेयर ऑफ कैसे करना है लायबिलिटीज, ये सब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे सर ने बताया देयर आर नो रिवाइज रिटर्न इन GST, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि GST आ गया तो ऑल इज वेल, कुछ गलती नहीं होने वाली, ऐसे तो नहीं है। इट्स अ बेसिक नेचर, टू अर्न इज ह्यूमन। तो अगर हम लोग गलती करेंगे तो उसका सुधार कैसे करेंगे। रिवाइज रिटर्न वॉज वन वे, बट हम लोग अभी उसको दूर रखेंगे। विदाउट रिवाइजिंग अ रिटर्न GST में करेक्टिव एक्शंस कैसे लेंगे, इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सो जो आज का लेक्चर का ये जो हाफ एन आवर सेशन होगा, इसमें हम लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, कौन कौन से रिटर्न्स है GST में। आज जब आप रिटर्न भरते हो तो रिटर्न में क्या क्या दिखाते हैं, पहले तो आप आपका सेल्स दिखाते हो, बाद में आप क्या दिखाते हो, आपका परचेसेस दिखाते हो, और थर्ड पोर्शन जो होता है सेल्स का लायबिलिटी, परचेस के साथ का इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बेसिस पे आप कंप्यूटेशन करते हो। सो दिस थ्री रिटर्न में 3 पार्ट्स है बेसिकली। तो GST में ये तीनों पार्ट्स अलग अलग किए हुए, लगता है GSTR 1 2 3 है, देयर आर 3 डिफरेंट रिटर्न्स, बट दियर 3 डिफरेंट रिटर्न्स आर पार्ट ऑफ जस्ट वन रिटर्न दैट यू आर फिलिंग इन द प्रेजेंट सिस्टम। GSTR 1 क्या है, GSTR 1 इज योर सेल्स डिटेल्स, जितना भी सेल्स है इन डिफरेंट कैटेगरीज, इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है, टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है, एक्सपोर्ट है, जो भी है। तो GSTR 1 में आपका पूरा सेल्स रजिस्टर अपलोड करना है, कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, बट GSTR 1 इज बेसिकली योर सेल्स रजिस्टर, GSTR 2 is your purchase details and GSTR 3 is your computation of tax. So ये अगर 3 रिटर्न भी दिखते हैं तो there are not 3 different returns, it's just a segregation of one return on 3 different parts on 3 different dates. That is more important. And इसमें ऑटो पॉपुलेशन भी होगा, क्योंकि जब आप सेल परचेस ट्रांजैक्शन देखते हो तो एक का सेल है तो दूसरे का परचेस है। अगर आइडियल सिचुएशन में सब लोगों ने अपना सेल दिखा दिया तो परचेसर को अपना परचेस अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका सेल तो आ गया। ज़रूरत कहाँ पे है, क्योंकि सामने वाला अगर नहीं दिखाता है, इंपोर्ट है तो सामने वाला इज आउटसाइड द टेरिटरी, तो वो तो नहीं दिखाने वाला। या मेरा URD परचेस है, अनरजिस्टर्ड टैक्स डीलर से परचेस है, तो वो तो रिटर्न नहीं भरने वाला है। तो टू दैट एक्सटेंट मुझे मेरा परचेस दिखाना है, अदरवाइज मेरा परचेस मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिससे परचेस कर रहा हूँ वो खुद दिखा रहा है उसके सेल में। तो उसके सेल में अगर वो डिटेल आ रहा है तो मुझे दोबारा वो भरने की ज़रूरत नहीं है। सो वो सिस्टम कैसे काम करेगी ये देखने से पहले, और जितने भी रिटर्न के टाइप्स है, दिस इज जस्ट फॉर, क्योंकि आपको कभी ना कभी ये भरने पड़ेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो TDS हो सकता है, आज के डेट में अभी तक वो किस किस के लिए TDS मैंडेटरी होगा वो काम चल रहा है, बट TDS रिटर्न है, TCS रिटर्न है, सो दोज आर डिफरेंट रिटर्न्स। ऑल दिस रिटर्न्स आर मंथली रिटर्न्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे खानंदे सर ने बताया कि एवरी डीलर, मतलब GST में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 80 लाख डीलर्स, उसमें से अगर कॉम्पोजिशन का रिटर्न है GSTR 4, उसकी पीरियोडिसिटी क्वार्टरली है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि नॉट मोर देन 5 लाख डीलर विल बी इन कॉम्पोजिशन। सो मेजॉरिटी मतलब 75 लाख डीलर्स विल बी फाइलिंग monthly returns, and with every return, as I told you, we will be capturing invoice wise details. So we are expecting around 300 to 400 crore invoices का data every month, और ये सब डेटा मैच मिसमैच सब एक्शंस उस पर लेने हैं। तो वो करने के लिए कुछ सिस्टम है, क्योंकि वो सिस्टम से नहीं जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। सो सबसे पहले हम लोग ड्यू डेट्स देखेंगे कि ड्यू डेट्स क्या क्या। जस्ट बिफोर दैट there are 2 more returns. One is annual return. Annual return is nothing but your current 704, जो आज भी है, सिमिलर फॉर्मेट में है, बस उसका कुछ कंडीशंस अलग से होंगे। जैसे 2 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको फाइल करना है, या अगर आप TDS TCS वाले हो तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ये आ जाएंगे रूल्स या रेगुलेशंस। बट
देर इज दैट रिटर्न, एंड वन इज अनशेड्यूल्ड रिटर्न, जैसे कोई टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है उसको भी रिटर्न भरना है, उसको भी क्रेडिट पास ऑन करना है, तो उसके लिए अनशेड्यूल्ड रिटर्न्स है। बाकी रिटर्न्स में जीएसटी एनी टैक्सेशन एक्ट में रिटर्न्स इज नथिंग न्यू। सो ड्यू डेट्स फॉर रिटर्न्स क्या क्या है? GSTR 1 का जो है 10th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, मतलब अगर आप अप्रैल का भर रहे हो तो 10 मई इज द ड्यू डेट फॉर GSTR 1। GSTR 2 के लिए 15th है, तो 15th मई, और GSTR 3 के लिए है 20th। सो दीज आर द ड्यू डेट्स। फॉर अदर रिटर्न के ड्यू डेट्स भी हम लोग देख लेते हैं, देन वी विल गो ऑन एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। GSTR 4 इज 18th, GSTR 5 is 28th, GSTR 6 is 13th, then GSTR 7th, 8th दोनों का 10th है, and GSTR 9 which is annual return, annual return का 31st December of the subsequent year, मतलब अगर आप 16-17 का एनुअल रिटर्न भरना है तो 31st दिसंबर 2017 तक आप आपका एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। नाउ आई विल गो डायरेक्टली टू दिस स्लाइड। See, GSTR 1 में आप क्या भर रहे हो? GSTR 1 में आप भर रहे हो आपका इनवॉइस वाइज सेल्स डिटेल्स। सो जब आप 10 तारीख तक सेल्स डिटेल्स अपलोड करते हो, अब जो आपको अपलोड करना है ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ अपलोड करो, आप जैसा जैसे सेल करते रहो, यू कैन अपलोड इट फ्रॉम डे 1 2 3 4, थोड़ा अपलोड कर सकते हो। आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हो। द फैसिलिटी इज अवेलेबल टू यू ऑन GST नेटवर्क। वहाँ पे कुछ यूटिलिटीज़ भी क्रिएट की हुई है, एंड जो सर्विस मतलब देर आर सर्टन कैटेगरीज विच आर आइडेंटिफाइड एज GST सुविधा प्रोवाइडर्स। वो क्या है हम लोग अलग से देखेंगे, बट उनके थ्रू भी आप ये डेटा अपलोड कर सकते हो। सो डेटा अपलोड के लिए आपको टाइम है 10 तारीख तक का। बिफोर 10th यू कैनॉट अपलोड, मतलब फाइनली अपलोड नहीं कर सकते। यू कैन कीप ऑन फिलिंग, सेव इट, इट विल रिमेन इन द सिस्टम, एंड 10 तारीख को आपको अपलोड करना है, बट इन बैचेस, लमसम, जैसे भी करना है। परचेस का डिटेल्स आपको भरना नहीं है। परचेस का क्या है, 10 तारीख के बाद सिस्टम विल जनरेट अ रिपोर्ट एंड इट विल शो ईच ऑफ द डीलर आपका परचेस कितना है। सो सिस्टम विल जनरेट GSTR 2A। 2A इज प्रोविजनल। GSTR 1 तो आज सेलर ने भर दिया, उसके बेसिस पे जितने जितने लोगों को उसने सेल किया है सबके GSTR 2A जनरेट होंगे। जब भी ये GSTR 2A जनरेट होंगे, आपको क्या करना है, सामने वाले ने जो परचेस मुझे दिखाया है आपको उसको वेरीफाई करना है। ये मेरा परचेस करेक्ट है, ओके, एक्सेप्टेड है, कोई इशू नहीं है। आपने जितना भी एक्सेप्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली आपका GSTR 2 तैयार हो गया। आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है। बट हो सकता है कि ये इनका परचेस था, गलती से मेरे नाम पे दिखा है, तो वो मुझे रिजेक्ट करना है। ये मेरा परचेस नहीं था, मे बी सम मिस्टेक है जो आपने मुझे दिखाया है, तो उसको मुझे रिजेक्ट करना है। तीसरा एक्शन मैं क्या लेता हूँ? तीसरा एक्शन ये है कि ये मुझे मॉडिफाई करना है। ये 10,000 का नहीं था, 11,000 का था, 12,000 का था, आपने गलती से 10,000 दिखाए है, या उस पर रेट ऑफ टैक्स 5% नहीं था, 12.5% था, आपने गलती से दिखाया है। जो भी क्वांटिटी का एरर होगा, वैल्यू का एरर होगा, तो कोई भी एरर होगा और आपको उसे मॉडिफाई करना है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। चौथा ऑप्शन क्या है कि जैसे आपका इनवॉइस कोई लास्ट डेट पे हुआ है, 30 तारीख को हुआ है, तो 30 तारीख को सेलर ने तो दिखा दिया, बट आपने अभी तक परचेस बुक नहीं किया है। वेरियस रीजंस, एक तो आपको परचेस मिला नहीं होगा, दूसरा रीज़न है जब तक आपको लैबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आता है, क्वालिटी चेक का इशू क्लियर नहीं होता है, तब तक आप उसको अकाउंट फॉर नहीं करोगे। सो यू कैन कीप दैट परचेसेस ऑन होल्ड। जो भी आप होल्ड पे रखते हो, क्या होगा, दैट विल ऑटोमेटिकली गो टू नेक्स्ट रिटर्न पीरियड। मतलब मंथली रिटर्न है तो अगले महीने में वो चला जाएगा। जहां पे भी आपने एक्सेप्ट कर लिया वो आपके GSTR 2 में चला गया, बट जहां पे मैंने रिजेक्ट कर लिया या जहां पे मैंने मॉडिफाई कर लिया, तो वो मेरे सेलर को भी पता होना चाहिए कि ये सेल जो है ये इसमें कुछ गड़बड़ है, ये ना बोल रहा है, सामने वाला ये सही नहीं है ऐसे बता रहा है, तो वो GSTR 1A क्रिएट होगा। एवरी सेलर जितना भी ऐसे मॉडिफिकेशन से रिजेक्शंस होगा, दैट विल गो टू हिज GSTR 1।
सो GSTR 1 में उसको पता चलेगा कि मैं जो सेल दिखा रहा हूं उसमें कुछ इश्यूज है जो परचेसर को एक्सेप्टेड नहीं है। सो अगर GSTR 1 में मेरे आता है, देन एज अ, जैसे परचेसर को ऑप्शंस अवेलेबल थे, ऑब्वियसली सेलर को भी ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, ही कैन एक्सेप्ट, हाँ मेरी गलती थी, ये आपका नहीं है दूसरे का है, आई एक्सेप्ट, वापस ले लिया, ये मेरा आपने जो दिखाया वो सही है। दूसरा, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं नहीं आप बोल रहे हो गलत है, जो मेरा है वही सही है, तो वो रिजेक्ट हो गया। तीसरा, वो भी मॉडिफाई कर सकता है। सो ये ऑप्शंस जो एज अ परचेसर को अवेलेबल थे, सेम ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द सेलर ऑल्सो। तो अगर जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो उसके ऑटोमेटिकली GSTR 1 में चला गया, वो GSTR 1 फाइनल हो गया। जो भी रिजेक्ट किया, जो भी मॉडिफाई किया, वो तो वापस उसको परचेसर को दिखाना है। बट अगर ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा तो आपका रिटर्न कभी फाइनल नहीं हो पाएगा। सो रिटर्न को हमको फाइनल करना है उसी रिटर्न पीरियड में। तो जितना भी एक्सेप्टेड है दैट विल गो टू GSTR 1, आपका रिटर्न फाइनल हो गया। जितना भी मिसमैच है, रिजेक्ट है, मॉडिफिकेशन है, पेंडिंग है, दैट विल गो टू योर नेक्स्ट रिटर्न पीरियड। तो आपको नेक्स्ट रिटर्न पीरियड मतलब और एक महीने का पीरियड मिलता है जिसमें आपको ये करेक्टिव एक्शन लेनी है। अब ये रिटर्न में मैंने जितना भी परचेस दिखाया है और मैंने क्लेम किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब मैं मेरा परचेस दिखा रहा हूँ तो मैं, अच्छा उसमें उसके पहले और एक है कि ये तो जो सेलर ने बताया उतना तो मेरे GSTR 2 में आ गया, बट हो सकता है कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो कोई सेलर दिखाने वाला नहीं है, या मुझे URD परचेस है, या सेलर ने दिखाया नहीं है, सप्रेशन है, या वो गलत कुछ कर रहा है, तो तभी भी आपको एज अ परचेसर यू हैव वो ऑप्शन टू अपलोड दैट इनवॉइस इन योर GSTR 2। और ये फिर सेलर को भी पता चलेगा कि सेलर ने तो नहीं दिखाया बट परचेसर ने वो दिखा दिया, क्योंकि उसको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, उसने उसको पैसा दिया है, क्रेडिट लेना है, गुड्स रिसीव हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन तो हुआ है। अगर सेलर वो ट्रांजैक्शन नहीं बता रहा है तो डील परचेसर कैन ऑलवेज शो द ट्रांजैक्शन एंड क्लेम इट। सो अगर वो क्लेम करता है तो क्या होता है कि अगर वो क्लेम करता है तो उसका वो महीने में वो क्लेम इज एक्सेप्टेड। देर आर मिसमैचेस, क्योंकि देर आर मिसमैचेस कौन से है, जो रिजेक्शन है, मॉडिफिकेशन है, या ये जो मिसमैचेस है, दोज मिसमैचेस विल बी देयर। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दोज मिसमैचेस द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट वॉट एवर क्लेम्स यू हैव मेड इन योर GSTR 2 इन दैट मंथ। तो आपने जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है आपको वो महीने में मिलेगा। बट क्या है कैच, ये जो आपका है क्लेम किया हुआ क्रेडिट वो प्रोविजनल है, वो अभी तक मैच नहीं हुआ है। सिस्टम अगर मैच नहीं होता है तो क्या होगा, ऑटो रिवर्सल एंड ऑटो पॉपुलेशन इन योर नेक्स्ट रिटर्न। बट इसका फायदा क्या है, ये जो होने वाला है ये आपका 10 तारीख को सेलर अपलोड करेगा, 15 तारीख को परचेसर वो वैलिडेट करेगा या खुद कुछ अपलोड करेगा, तो 15 तारीख तक ये जो भी जितना भी मैच मिसमैच होने वाला है आपको सब पता चलेगा। आज क्या हो रहा है, आज आपको 3 साल बाद 4 साल बाद पता चल रहा है कि ये मिसमैच हो गया, इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा है, अब भरो, वो भी इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ। तब से तो आपको 15th डे ये सब पता चलने वाला है कि आपका मैच और मिसमैच कितना है। अच्छा, जब आपका मिसमैच होता है तो आज क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है चलो IBA के लिए आ जाओ, इशू बेस्ड ऑडिट करेंगे आपका, या आपका असेसमेंट करेंगे, अगर ज़्यादा ही कुछ मिसमैच है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे या स्क्रूटिनी करेंगे, जो भी। तो जब भी आपका मिसमैच है तो इमीडिएटली गवर्नमेंट स्टेप्स इन और एक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको आपके मिसमैचेस आर अवेलेबल टू यू ऑन द सिस्टम। ये जितने भी मिसमैचेस है सेलर को पता है, परचेसर को पता है, स्टेट गवर्नमेंट को पता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है। सो मिसमैचेस तो सबको पता है, बट गवर्नमेंट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। देखो भाई, आपका ये मिसमैच है, अगला 1 महीना आपके पास है, आप इसको रेक्टिफाई करो। अगर आपका ये रेक्टिफाई होता है, गवर्नमेंट इज हैप्पी विथ इट, दे विल नॉट कॉल यू फॉर एनी असेसमेंट और ऑडिट और एनीथिंग फॉर दैट। ये आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आपके जितने भी मिसमैचेस है आप आपस में क्लियर करो। अगर आप आपस में क्लियर करते हो तो गवर्नमेंट एक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपका 2 महीने तक के मिसमैच रहा, देन द गवर्नमेंट नोस दैट देयर इज अ मिसमैच। तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, फर्स्ट एक्शन ये है
कि ये जो क्रेडिट आपको मिसमैच का मिला था वो तो प्रोविजनल क्रेडिट था, तो ये प्रोविजनल क्रेडिट ऑटोमेटिकली रिवर्स होगा और आपका जब रिटर्न भरोगे नेक्स्ट, उसमें वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, तो आपका लायबिलिटी वो अमाउंट से ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाएगा थ्रू सिस्टम विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि प्रोग्राम ही उस तरह से किया गया है कि मिसमैच है, एक महीना क्रेडिट दे दिया, अगले महीने तक मिसमैच नहीं करेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न में वो चला जाएगा। सो आपको वो एक महीने का, अगले महीने का पीरियड है जब तक आपको ये सब करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। करेक्टिव एक्शंस नहीं लिया आपने, ऑटो पॉपुलेट हो गया, आपसे रिकवरी कर लेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना रेवेन्यू तो सिक्योर कर लिया, क्योंकि सेलर ने नहीं भरा, परचेसर का क्रेडिट डिसअलाउ, अपना इशू क्लियर। बट गवर्नमेंट का एक्शन कंप्लीट हो जाता है क्या? पॉसिबल है कि ये सेलर तो परचेसर बराबर था, उसका क्लेम भी बराबर था, दैट वाज अ सेलर्स मिस्टेक। एक्शन क्या हुआ कि परचेसर से रिकवर हो गया, बट नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट के पास वो सब डेटा है मैच मिसमैच का। तो और यहाँ पे जो हो रहा है कि the system will have invoices of each and every dealer, 80 lakh dealers, 3,300 400 crores every month। तो वो डेटाबेस क्रिएट होता जाएगा। वो डेटाबेस के वजह से देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, डेटा वेयरहाउसिंग टूल्स की, जिसकी वजह से ये मिसमैच का रिजल्ट कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई करने के अटेम्प्ट्स किए जाएंगे कि ठीक है, अगर परचेसर का है तो इट इज़ ऑलरेडी रिवर्स, बट अगर ये मिसमैच इज ड्यू टू सेलर्स निग्लेक्ट है या सप्रेशन है या कुछ है, देन अ पॉजिटिव गवर्नमेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड और वो बेसिस पे वो एक्शन इनिशिएट होगी। बट ये एक्शन इनिशिएट विल बी एट अ लेटर स्टेज, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद इनिशिएट होगी। इनिशियल जो भी होगा ऑटोमेटिकली रिवर्सल होगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी सिर्फ 2 ही रिटर्न देखे, GSTR 1, 2 इसमें देखा, बट जैसे मैंने आपको जितने भी रिटर्न्स के फॉर्मेट बताए थे, GSTR 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो उसमें भी ये सब साइकिल्स चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी TDS का क्रेडिट है, TDS का क्रेडिट आपको गलत आया हुआ है, तो यू कैन क्लेम इट। जैसे आप GSTR 2 में आपका परचेस क्लेम कर सकते हो, तो जैसे TDS का क्रेडिट भी किसी ने आपको नहीं ट्रांसफ़र किया है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो वो क्लेम मिसमैच रहेगा, बट दैट विल बी अलाउड टू यू एंड इट विल गिव अ पॉइंटर टू गवर्नमेंट कि ठीक है, यहाँ पे मिसमैच है, बट कुछ इश्यूज है जो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। जब तक आप आपस में सॉर्ट आउट कर देते हो कोई इशू नहीं है। सो ये जो सिस्टम है मैचिंग मिसमैचिंग की एंड ऑटो रिवर्सल की, दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर, इसलिए वजह से है कि आज जो आपको 3 साल बाद 4 साल बाद पता चल, सी ऑफकोर्स आपको आपका बिजनेस के जो करने के तरीके, अगर आपका क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, 60 डेज है, 90 डेज है, तो उसके पहले आपको पता चलने वाला है कि इससे क्रेडिट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। और दिस इज GSTN का फर्स्ट ईयर, तो GSTN के पास आपका कुंडली नहीं है, बट जैसे जैसे ये होता जाएगा आगे, GSTN विल ग्रो 1 year old 2 year old, तो ये पूरा डिटेल सिस्टम के पास होंगे। जब सिस्टम के पास होंगे तो सिस्टम विल गिव यू अ रेटिंग, जो रेटिंग विल बी अवेलेबल टू यू ऑन द GSTN वेबसाइट। तो जब भी आपको किसी डीलर के साथ ट्रांजैक्शन करना है तो यू कैन सी हिज रेटिंग, वेदर दिस पर्सन इज कंप्लायंट, ये टैक्स टाइम पे भरता है, ये बराबर डिस्क्लोज करता है। अगर ये करता है तो मुझे मेरा क्रेडिट भी सेफली मिलने वाला है। अगर मुझे मेरा क्रेडिट सेफली मिलने वाला है तो मैं उसके साथ बिजनेस करूंगा। अगर उसका क्रेडिट रीचिंग नीचे है तो हो सकता है कि वो क्रेडिट मुझे पास ऑन ना किया जाए, तो आई कैन टेक ए चांस। अगर मतलब वो जो बिजनेस कॉल है आपका, वो आप लेने के लिए GSTN पे वो डीलर का रेटिंग आप देख सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 3 months 6 months। जब भी उसका डिटेल्स गवर्नमेंट के पास आता जाएगा, फिर उसका मिसमैच कितना आता है, मिसमैच का करेक्टिव एक्शंस क्या होता है, वो सब के बेसिस पे वो रेटिंग होगा विच विल बी अवेलेबल टू यू ऑन द सिस्टम। उसका दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपका रेटिंग अच्छा है तो आपका रिफंड्स क्विकली हो जाएगा, आपको असेसमेंट का कम से कम ज़रूरत पड़ेगा। सो आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स भी है एंड निगेटिव फीडबैक भी है कि ये पर्टिकुलर डीलर के साथ बिजनेस करना है, वेदर दैट इज़ गुड फॉर योर बिजनेस और नॉट। सो ये सब GST नेटवर्क पे होगा और ये सब रिटर्न के बेसिस पे होगा। आप जो भी रिटर्न्स फाइल करते हो, पेमेंट करते हो, उसके बेसिस पे ये सब होने वाला है। तो दिस वाज बेसिकली रिटर्न का मैचिंग एंड मिसमैचिंग।
बट ये मैचिंग मिसमैचिंग के लिए आपको जीएसटी में भरना क्या क्या है, क्योंकि अगर आपको इस तरीके का रिटर्न अपलोड करना है तो वो रिटर्न अपलोड करने के लिए वो इंफॉर्मेशन आपको आपके इनवॉइस में कैप्चर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके इनवॉइस में वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके रिटर्न में नहीं जाएगी, और रिटर्न में देयर आर मैंडेटरी फील्ड्स, अगर वो मैंडेटरी फील्ड्स आप फिल नहीं कर पाओगे तो रिटर्न अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके लिए वो इंफॉर्मेशन होना रिटर्न में इनवॉइस में बहुत ज़रूरी है। उसमें मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन तो बेसिक है, लाइक जीएसटी नंबर है, इनवॉइस है, डेट है। एक ये है HSN एंड SSC कोड। HSN कोड जो अभी आपको बताया कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपको कोई कोड भरने की ज़रूरत नहीं है, बट 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक 2 डिजिट भरना है, मतलब चैप्टर हेड जो है उसके हिसाब से भरना है। 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 4 डिजिट कोड भरना है। एंड अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्ट हो तो ऑब्वियसली आपको 8 डिजिट का आदत भी होगा, सो यू विल हैव टू फिल दैट 8 डिजिट कोड इन योर इनवॉइस। सेकंड इज प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइस में होना ज़रूरी इसके लिए है क्योंकि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुझे इस पे इंट्रास्टेट टैक्स भरना है या इंटरस्टेट भरना है, क्योंकि जैसे आपको बताया गया कि इंटरस्टेट कब होगा, प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इफ दे आर इन द वन स्टेट देन इट्स अ इंट्रास्टेट सप्लाई। अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में है तो इट्स इंटरस्टेट सप्लाई। तो ये आपको पहले जानना ज़रूरी है कि मुझे ये ट्रांजैक्शन पे कौन सा टैक्स भरना है, IGST भरना है या CGST SGST भरना है, क्योंकि आपकी गलती हो गई तो क्या है रिजल्ट, आपको दूसरा टैक्स वापस भरना है और पहले का रिफंड लेना है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि रिफंड लेना किसी भी गवर्नमेंट से इट्स नॉट दैट इजी। सो आपको फर्स्ट पॉइंट पे ही ये इंश्योर करना है कि कोई गलती ना हो। सो दैट्स वाई प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इनवॉइस में यू कैन हैव गुड्स एंड सर्विसेज, एक ही इनवॉइसेस में आप कर सकते हो। एक ही इनवॉइसेस में आप डिफरेंट लाइन आइटम्स विद डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, 5% वाला है, 12% वाला है, 18% वाला है, एक ही इनवॉइस में कर सकते हो। सिर्फ एग्जम्प्ट वाले जो है उसके लिए आपको अलग से इनवॉइस देना पड़ेगा, और एक ही इनवॉइसेस में आप 2 प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं कर सकते। कभी कभी हो सकता है कि मुझे अभी 10 टन सीमेंट का ऑर्डर मिला है, उसमें से 5 टन मुझे देना है महाराष्ट्र में और 5 टन मुझे देना है गुजरात में। इट्स पॉसिबल, बट मैं उसके लिए एक इनवॉइस नहीं बनाऊंगा। गुजरात के लिए मुझे अलग से बनाना है, महाराष्ट्र के लिए अलग से बनाना है, क्योंकि इट्स डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेसिस पे वो ITC फ्लो होने वाला है। ITC विल फ्लो अलॉन्ग विद द गुड्स। तो एक ही इनवॉइस में मैं 2 प्लेसेस ऑफ सप्लाई नहीं दिखा सकता हूँ, इतना ही रिस्ट्रिक्शंस है। बाकी आप कुछ, मुझे इनवॉइस में पर्टिकुलर नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपलोड कर सकते हो। सामने वाला मिसमैच करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही करना है। तो आपका नंबरिंग जो होगा या आपका जो फॉर्मेटिंग होगा, जो सिस्टम होगा, ही विल फॉलो दैट। अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ है तो वो मॉडिफाई कर लेगा, बट अदरवाइज आपका कुछ सिस्टम अलग है, उसका कुछ सिस्टम अलग है, ऐसे कोई इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि आपका सेल ऑटोमेटिकली उसके पास पॉपुलेट होता जाएगा एंड ही जस्ट हैव टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट या मॉडिफाई। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। बाद में जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ बल्क अपलोड। सो जैसे वी थिंक वी विल गो टू दैट स्लाइड, सॉरी इस यहाँ वो आगे चला गया, ठीक है। जो बल्क अपलोड करना है तो आई थिंक वी विल सी दिस इशू व्हेन वी गो टू द डेमो हैंड्स ऑन। GSTR 1 आपको भरना है, GSTR 2 मेजॉरिटी ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, आपको उस पर सिर्फ कुछ कुछ एक्शंस लेने हैं। GSTR 3 जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला है। तो GSTR 3 में आप, क्योंकि GSTR 2 में आपको आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कितना एलिजिबल है, कितना अलाउेबल है, कितना आप क्लेम कर रहे हो, ये सब आपको वहाँ पे दिखाना है। अगर आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है बट वो एलिजिबल या अलाउेबल नहीं है, आपको एलिजिबल कब होगा, जैसे आपने एडवांस दिया तो एडवांस पे आपको टैक्स आ गया, बट वो टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकते हो, व्हेन यू रिसीव दोज गुड्स। अगर वो 6 महीने के बाद मिलने वाले, 4 महीने के बाद मिलने वाले, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वो 4 महीने के बाद मिलेगा। तो तब तक वो क्रेडिट कहाँ पे रहेगा, आपके लेजर अकाउंट में रहेगा। यू कैन सी दैट क्रेडिट बट यू कैन नॉट क्लेम इट।
सो वो जो क्रेडिट आपके अकाउंट में रहेगा, वो लेजर कैसे देखेंगे वो भी हम लोग है उसका भी स्लाइड्स. विल कम टू करेक्शन ऑफ रिटर्न्स. रिटर्न्स में क्या क्या गलती हो सकती है. एक तो मैंने कम दिखाई मेरी टैक्स लायबिलिटी, एक तो मैंने ज़्यादा दिखाई, या तीसरा गलती मैंने एक को दिखाना था वो मैंने दूसरे को दिखा दिया. सो दिस टाइप ऑफ एरर्स यूजुअली हैपन इन रिटर्न. जीएसटी में स्पेसिफिकली रिवाइज रिटर्न क्यों नहीं रखा गया, उसके लिए भी लॉजिक है. फर्स्ट रीज़न क्या है कि आज का जो रिटर्न है, आज का रिटर्न में हम लोग क्या करते हैं, मेरा ग्रॉस टर्नओवर से शुरू हो जाता है और ग्रॉस टर्नओवर से फिर मैं डिडक्शंस लेके नेट टर्नओवर और ये सब करता हूँ. तो मुझे अगर कुछ चेंज करने तो वो मुझे ग्रॉस टर्नओवर में ही करने. सो अगर ग्रॉस टर्नओवर एक बार चेंज हो गया तो नीचे भी आगे बहुत सारे चेंजेस मुझे करने पड़ते हैं. बट जीएसटी का जो रिटर्न है वो रिटर्न इनवॉइस वाइज है. तो अगर आपका मिस्टेक किसी इनवॉइस में हुआ है, एक इनवॉइस में हुआ है या 10 इनवॉइस में हुआ है, तो आपको सिर्फ वो 1 या 10 इनवॉइस ही करेक्ट करने हैं, आपको बाकी का एंटायर रिटर्न को देखने की ज़रूरत नहीं है. सो वो अगर आपको नहीं करना है तो आपका रिटर्न रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ वन रीज़न. सेकंड रीज़न क्या है, जब भी आप रिटर्न अपलोड करोगे, 1 तारीख को मतलब 10 तारीख को होगा, 15-20 को जब भी होगा, वो जब फाइनल रिटर्न भरोगे 20 तारीख को, तो वो रिटर्न भरने के बाद सबके लेजर्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने वाले हैं. सो आपने जिसको भी क्रेडिट ट्रांसफ़र किया उसके अकाउंट में वो क्रेडिट चला गया, उस हिसाब से वो क्रेडिट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने वाला है, एक डीलर से दूसरे डीलर को जाने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है. सो अगर एक बार ये क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गया, जैसे आप सोचते हो कि गवर्नमेंट से पैसा लेना डिफिकल्ट है, वापस आना, वैसे गवर्नमेंट को भी वो प्रॉब्लम है. दूसरे गवर्नमेंट को दिया, कब आएगा वापस पता नहीं, या सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया तो उसके पास कटोरा लेके बैठना ही पड़ेगा कि कब वापस भेजते नहीं. तो एक बार इसके लिए ये रिटर्न के हिसाब से जितने भी एक्शंस हो जाएंगे, देन देयर इज नो रिवाइज्ड रिटर्न. बट एट द सेम टाइम मिस्टेक्स होंगे, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कैसे करेंगे. तो पहला एग्जांपल क्या था, हम लोगों ने देखा कि मैंने मेरी लायबिलिटी कम दिखा दी, कुछ इनवॉइसेस जो मुझे दिखाने चाहिए थे वो मैंने नहीं दिखाए, मे भी गलती से भूल गया या अप्रूवल पे करना था, वो कब अप्रूवल का डेट निकल गया पता नहीं चला. सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि मेरे 2 इनवॉइसेस दिखाना भूल गया. सो अगर ये मेरे 2 इनवॉइसेस में दिखाना भूल जाता हूँ, अप्रैल महीने के 2 इनवॉइसेस है, मुझे अगस्त में याद आया कि मैंने वो 2 इनवॉइसेस नहीं दिखाए जो मैंने अप्रैल में करने चाहिए थे. तो जब मुझे अगस्त महीने में ये वो रियलाइज़ हुआ, तो जब मैं अगस्त महीने का रिटर्न भरने जाऊंगा तो अगस्त का रिटर्न का जो भी डिटेल्स है वो तो मुझे देना ही है वहाँ पे. इन एडिशन टू दैट वहाँ पे नीचे एक बॉक्स होगा जहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आपको कोई प्रीवियस लायबिलिटी जो आपने नहीं बताई या जो आपसे छूट गई है वो ऐड करनी है क्या. सो वो आपको वहाँ पे ऐड करनी है. तो जब आप वहाँ पे ऐड करोगे ऑटोमेटिकली आपका टैक्स अकॉर्डिंगली बढ़ेगा. बट एट द सेम टाइम वो लायबिलिटी कौन से महीने की थी, अप्रैल महीने की थी, आपने कब दिखाई, अगस्त में, तो उस पर जो लेट पेमेंट होगा, इंटरेस्ट होगा, वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके वो रिटर्न में जोड़ दिया जाएगा. सो अगर ये हो गया एक. दूसरा है कि आपको लायबिलिटी कम करनी है, कुछ गुड्स रिटर्न आए हैं या किसी ने माल वापस भेज दिया है, जो भी हुआ है, तो आपको उसके लिए डेबिट क्रेडिट नोट का जो मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल करना है. सो आप उसको डेबिट क्रेडिट नोट दोगे, जो जितना भी ये माल वापस आ गया है उसके हिसाब से क्रेडिट नोट होगा. एंड ये डेबिट क्रेडिट नोट आपको आपके रिटर्न में अपलोड करने हैं. जैसे आप इनवॉइस का डिटेल्स अपलोड करोगे, इन द सेम वे आपको डेबिट क्रेडिट नोट्स का भी डिटेल्स अपलोड करना है. और ये जितना भी आप अपलोड करोगे, जैसे इनवॉइस का मैचिंग होगा वैसे डेबिट क्रेडिट नोट्स का भी मैचिंग होगा. तो जैसे आपने दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तो उसका भी ऑटोमेटिकली रिवर्सल हो जाएगा ना, कि आपने उसका क्रेडिट मतलब टैक्स लायबिलिटी कम कर लिया गुड्स रिटर्न की वजह से. तो अगर उसने क्रेडिट क्लेम कर लिया है वो आईटीसी का, तो उसको भी रिवर्स करना है. तो जब वो एक्सेप्ट करेगा ऑटोमेटिकली ये होगा. और जब तक ये आप आपस में कर रहे हो डेबिट क्रेडिट नोट एक्सेप्टेड, तब तक गवर्नमेंट को कोई इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है. बट हो सकता है कि आपने डेबिट नोट निकाला, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, सिस्टम में अनमैच्ड पड़ा हुआ है, तो इन दैट केस फिर देर इज़ अ मिसमैच जिसका रिपोर्ट सबके पास है, देन अ पॉजिटिव करेक्टिव एक्शन में भी रिक्वायर्ड. तब तक ये पॉजिटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है. तो जितना भी करेक्टिव एक्शंस है दैट यू हैव टू
take through your debit credit notes. एनुअल रिटर्न तो छोड़ देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल रिटर्न ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि कुछ एडिशनल है इसमें। फर्स्ट रिटर्न क्या है कि जब आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा एंड यू नीड टू रजिस्टर, तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है रजिस्टर करने के लिए। 30 दिन के बाद आपको जिस हिसाब से 3 दिन में 7 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, जीएसटी नंबर आता है, तो जीएसटी नंबर तो आपके पास आ गया, बट जीएसटी डेट ऑफ इफेक्ट क्या होता है, जब आपने वो थ्रेशोल्ड एक्सीड किया, दैट डेट इज इफेक्टिव डेट। तो वो डेट से जब तक नहीं मिला तब तक के पीरियड में भी आपने कुछ बिजनेस किया हुआ है, तो अगर आपको उसमें जीएसटी, क्योंकि तब वो इनवॉइस जब आपने बनाए तो आपके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं था, तो अगर आपको जीएसटी नंबर वाले इनवॉइसेस बनाने हैं और ये डेटा अगर आपको अपलोड करना है, तो यू कैन डू दैट इन योर फर्स्ट रिटर्न। सो अगर किसी को क्रेडिट पास ऑन करना है बट आप नहीं कर पाए थे क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं था, तो वो फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे कर सकते हो, दैट इज इन योर फर्स्ट रिटर्न। इन द सेम मैनर आपके पास जब आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो तो कुछ स्टॉक पड़ा है, तब तो आप रजिस्टर्ड नहीं थे, तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको किसी ने क्रेडिट पास ऑन नहीं किया है, तो यहाँ पे चेन में तो आने वाला नहीं है, तो वो क्रेडिट आप जब सेल करोगे तो उस पर टैक्स तो लगेगा जीएसटी। तो जितना भी आपका रजिस्ट्रेशन के डे पे स्टॉक में माल पड़ा होगा उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, तो यू कैन डू इट इन योर फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न में आपको डिस्क्लोज करना है कि ये मेरा स्टॉक था, आरडी परचेस है, इस पर इतना इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जब मैं ये माल बेच रहा हूँ तब उसके सामने ये क्रेडिट में एडजस्ट कर लूँगा। तो ये सब आपको आपके फर्स्ट रिटर्न में दिखाना है। इन द सेम वे लास्ट रिटर्न में क्या होगा, लास्ट रिटर्न में जितना भी क्रेडिट आपने क्लेम किया हुआ है बट माल स्टॉक में पड़ा है उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, क्लोजर ऑफ बिजनेस, एंड ऑफ स्टॉक जो भी है, इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ कंजम्पशन, उतना आपको क्रेडिट रिवर्स करना है। सो दिस इज वाई फर्स्ट एंड लास्ट रिटर्न्स आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको हर रिटर्न भरना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने कोई रिटर्न नहीं भरा तो ये सिस्टम वर्क नहीं करेगी, इसलिए सिस्टम काम नहीं करेगी तो आपको आगे, क्योंकि आगे का जो है जीएसटीआर 2 जनरेट होना या वो सब होना वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका नील रिटर्न भी है तो भी आपको भरना मैंडेटरी है ये। और अगर आप नहीं भरोगे नील रिटर्न तो ऑटोमेटिकली मिसमैच आ जाएगा और वो उसके हिसाब से काम करेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल ऑफ मिसमैच। देयर इज वन मोर मिसमैच। वो कैसे काम करता है, आपने 10 तारीख को आपका सेल्स डिस्क्लोज कर दिया, आपका परचेस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया, उसके हिसाब से आपने एक्सेप्ट कर लिया, सब मैच हो गया, रिटर्न फाइलिंग का डेट आया, आपने रिटर्न अपलोड कर दिया। अब आपने रिटर्न अपलोड कर दिया बट रिटर्न के साथ आपको टैक्स भी पे करना ज़रूरी था। शॉर्ट पेमेंट है, नॉन पेमेंट है, ये सब हो सकता है। अगर कोई शॉर्ट पेमेंट होता है या नॉन पेमेंट होता है तो क्या होता है, इन दैट केस योर रिटर्न इज नॉट ट्रीटेड एज अ वैलिड रिटर्न। और अगर वो रिटर्न वैलिड नहीं है तो जितना भी पहले मैच हो गया है वो ऑटोमेटिकली मिसमैच में चला जाएगा। ये महीने के रिटर्न में तो आपको उसका क्रेडिट मिल गया क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, फर्स्ट महीने में आपको प्रोविजनल करके भी वो क्रेडिट दे देंगे, बट सेकंड महीने में अगर उसने वो पेमेंट नहीं किया देन सेम एक्शन, ऑटो रिवर्सल, ये मिसमैच के जितने भी है। सो देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मिसमैच। फर्स्ट मिसमैच इज आपका इमीडिएटली सेल परचेस का मिसमैच है। सेकंड मिसमैच, अगर आपने रिटर्न के साथ जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट नहीं किया। सो एवरी टाइम ये इंश्योर हो जाता है कि सामने वाले ने पेमेंट कर दिया है एंड यू आर एंटाइटल्ड टू फुल क्रेडिट। ये आपका जो भी साइकिल है 2 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। सो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली कि आपका बिजनेस कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या करना है, एंड ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रिटर्न भरना बहुत ही मैंडेटरी है। नाउ वी विल गो जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हाउ इट विल लुक लाइक फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट। GST and GST network is a private company, 51% प्राइवेट स्टेक होल्डिंग है, 49% गवर्नमेंट स्टेक होल्डिंग है, बट स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज ऑफ गवर्नमेंट। रीज़न सिंपल है, आपका रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट सब इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड वी नो आजकल जो चल रहा है वायरस अटैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, सो यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग
firewalls and things like that. तो एक गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होना ज़रूरी है डेटा सिक्योरिटी के हिसाब से. So it's a government controlled company. At the same, the company is private company. So government is also a service taker, क्योंकि ये जो कंपनी है इट्स अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी. जैसे आपको वो रिटर्न अपलोड करने की फैसिलिटी दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वैसे गवर्नमेंट को भी वो डिफरेंट सर्विसेज दे रही है. इनफैक्ट इसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ये सर्विस टैक्स फ्री में डाल दी है कि किसी को इस पे टैक्स नहीं भरना पड़े इस हिसाब से. सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन आर एब्सोल्युटली टैक्स फ्री. एट द सेम टाइम फॉर अ डीलर देर इज नो कॉस्ट. जो भी कॉस्ट है गवर्नमेंट इज गोइंग टू बेयर दैट कॉस्ट. सो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए या किसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कॉस्ट जीएसटीएन पे नहीं आने वाली है. सो जब आप जीएसटीएन पे जाओगे यू विल नीड, मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव माइग्रेटेड, तो आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह वो सब मिल जाएगा. सो उससे आपको लॉगिन करना है. वंस यू लॉगिन देर आर डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल ऑन जीएसटीएन. रजिस्ट्रेशन है, लेजर से, रिटर्न, पेमेंट, अदर सर्विसेज. तो अभी हम लोग रिटर्न का देख ले. तो सो विल गो टू रिटर्न. वंस यू क्लिक हियर यू गो टू रिटर्न डैशबोर्ड. रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद इट विल आस्क यू पीरियड, कौन सा पीरियड का आपको देखना है या करना है या जो भी एक्टिवेशन करना है. सो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड मंथ है, क्वार्टर है, जो भी है आपको डालना है. एंड ऑल दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स, यू कैन नॉट स्किप देम. सो उसके बाद आपको कुछ बॉक्सेस दिखेंगे. अभी ये स्क्रीनशॉट है. देयर आर प्लेंटी ऑफ बॉक्सेस बिलो. यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन टू सी द फर्दर बॉक्सेस. जीएसटीआर 1 है, 2 है, 3 है, वैसे 4, क्योंकि सिस्टम को पता नहीं है आपको किस में काम करना है. 5 में करना है, 6 में करना है, 9 में करना है. तो सिस्टम विल शो यू ऑल द बॉक्सेस. सो यू विल हैव टू चूज कि मुझे कौन से बॉक्स में जाके काम करना है. जीएसटीआर 1 भरना है तो मुझे जीएसटीआर 1 में जाना है. देन अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रिपेयर ऑनलाइन एंड अपलोड. ये अपलोड फैसिलिटी जो है ये आपको बल्क अपलोड के लिए है. अगर जीएसटी कंप्लायंट फॉर्मेट में आपका डेटा रेडी है तो यू जस्ट कैन अपलोड इट. देयर इज मतलब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं. बट कोई छोटा डीलर है उसके पास वो सब फैसिलिटीज़ नहीं है एंड ही वांट्स टू अपलोड इवन इनवॉइस बाय इनवॉइस, एक एक इनवॉइस करके भी उसको सिस्टम पे ही मुझे सब मेरा रिकॉर्ड बनाना है, मैं बाकी कुछ रखूँगा नहीं. स्टिल इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. यू कैन गो एंड प्रिपेयर ऑनलाइन. अच्छा, जीएसटी का जो रिटर्न फाइलिंग स्टेज ये है दैट इज 2 स्टेप प्रोसीजर. क्या है, व्हेन यू आर फाइलिंग इट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब आप डेटा भरते हो तो वो इंटरनल एरर्स के लिए ऑटोमेटिकली ऑनलाइन क्रॉस चेक करता है. आपने जिसका नाम डाला है, टिन नंबर डाला है, उसी का नाम डाला है या ऐसे कुछ कंसिस्टेंसी एरर्स जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिक चेक कर लेती है. बट हो सकता है कि आप ऑफलाइन भर रहे हो, डायरेक्टली अपलोड कर रहे हो, तो अपलोड करने के बाद भी वो इंटरनल कंसिस्टेंसी एरर्स जो है वो चेक करना ज़रूरी हो जाता है. तो उस हिसाब से वो चेक करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप है कि यू जस्ट हैव टू अपलोड दिस डेटा. एंड फाइलिंग है दैट इज अ सब्सिक्वेंट स्टेज. वो एवरी टाइम आपको पूछेगा, सिस्टम विल प्रॉम्प्ट यू कि आपने जो किया है कंप्लीट हुआ है या एंड वेदर यू वांट टू प्रोसीड विथ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. तो जब तक आप यू डोंट प्रोसीड विथ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जितना भी आप अपलोड करोगे दैट विल बी सेव्ड इन द सिस्टम, इट विल रिमेन इन द सिस्टम. ऐसे नहीं है कि आप एक ही बार सब एक्शन कंप्लीट करो. आप जितना भी अपलोड करोगे सिस्टम में ऐड होता जाएगा. तो विल गो टू प्रिपेयर ऑनलाइन. जब आप प्रिपेयर ऑनलाइन करोगे तो आपको वो अगेन जितने भी आपके सेल्स लेजर में जितने भी हेड्स होते हैं वो पूरे के पूरे आपको यहाँ पे दिखेंगे. बॉक्सेस है से यहाँ पे B2B इनवॉइस है, B2C इनवॉइस है, डेबिट क्रेडिट नोट है, एक्सपोर्ट है, टैक्स फ्री है, जितने भी हेड्स है वो पूरे के पूरे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाके देख सकते हैं. एंड देन यू हैव टू चूज अ रिलेवेंट बॉक्स एंड फिल इन द डेटा. सो हमने यहाँ पे B2B दिया है क्योंकि मैचिंग का थोड़ा सा सेशन लेना था, इसलिए वी हैव डन दैट एक्सरसाइज. अगर आप B2B में जाते हो एंड यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड सम इनवॉइसेस, तो यू कैन सी दोज इनवॉइसेस हियर. अगर आप पहली बार जा रहे हो तो यहाँ पे कोई इनवॉइस नहीं होगा. देन यू विल हैव टू से ऐड इनवॉइस. सो अगर आप ऐड इनवॉइस करोगे, यहाँ पे जाके क्लिक करना है आपको, देन इट विल गिव यू दिस फील्ड्स. दिस फील्ड्स आर मैंडेटरी फील्ड्स. इनवॉइस नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है. सो यू कैन सी हियर GSTIN नंबर, देन रिसीवर्स नेम वगैरह. सो जब भी आप यहाँ पे GST नंबर डालोगे, अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिसीवर्स नेम पॉपुलेट हो जाएगा, आपको वापस भरने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट जब हम लोग ये कर रहे थे तो ऐसे भी सजेशंस आएंगे कि नंबर तो 15 डिजिट का है, वी आर मोर फेमिलियर विथ नेम्स.
तो अगर मैं नाम यहाँ पे डालूँ तो नंबर भी आ जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि देयर कुड बी 500 आर्यहन ट्रेडर्स, तो मैं जब आर्यहन ट्रेडर्स डालूंगा तो सिस्टम वुड नॉट नो कौन सा पिकअप करना है। सो दैट्स वाई आपको नंबर डालना पड़ेगा, तो नाम ऑटोमेटिकली पिकअप होगा। अगर आप ऑफलाइन भर रहे हो तो आपको दोनों भरने पड़ेंगे। देन इनवॉइस नंबर है डेट, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई आप स्क्रॉल डाउन करोगे, अगर ये इंट्रास्टेट है तो ऑटोमेटिकली आपको CGST SGST कॉलम ओपन हो जाएंगे। अगर ये इंटरस्टेट है तो IGST वाले कॉमन। सो इंटरनल वैलिडेशंस एंड चेक्स यहाँ पे सिस्टम में ही इनबिल्ट किए हुए हैं। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, मतलब क्या है, ये सेल तो आपका है बट इस पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी है, परचेसर की है। सो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये तो आपके सेल्स रजिस्टर में चला जाएगा, बट जब आप फाइनली कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करोगे इन आपका GSTR 3 तो ये टर्नओवर डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर आपको टैक्स भरना नहीं है, टैक्स तो किसी को और को भरना है। और ये भी साइमल्टेनियसली टैग हो जाएगा कि अच्छा ये टिन नंबर है और इसको ये रिवर्स चार्ज पे भरना है, तो वो सामने दिखा रहा है कि नहीं, वो सिस्टम भी अगेन इंटरनली चेक करेगी। इन द सेम वे प्रोविजनल असेसमेंट का है या ई-कॉमर्स का है, क्योंकि ई-कॉमर्स में TCS होने वाला है। सो वो सब इन्फॉर्मेशन द सिस्टम विल प्रॉम्प्ट यू कि यहाँ पे आपको टिक करना है, चेक करना है, जो भी करना है, और उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। इनफैक्ट इसके नीचे बाकी सारे फील्ड्स है वो आपको अलग से स्क्रीन पे दिखेंगे। दिस इज आइटम वाइज डिटेल्स, कि एक ही इनवॉइसेस में देयर कुड बी मल्टीपल आइटम्स, लाइन आइटम्स। जैसे एक ही इनवॉइस में मैं लैपटॉप भी बेचता हूँ, डेस्कटॉप भी बेचता हूँ, मोबाइल भी बेचता हूँ, तो देयर आर 3 डिफरेंट लाइन आइटम्स, तो उस हिसाब से ये लाइन आइटम्स है। सो यहाँ पे कैटेगरी है, आप यहाँ पे गुड्स लिखोगे तो ऑटोमेटिकली HSN नंबर आएगा। आप यहाँ पे सर्विसेज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सर्विस अकाउंटिंग कोड आ जाएगा। तो आपको सिस्टम विल ऑल्सो, क्योंकि एक बार सिस्टम के पास आप फर्स्ट टाइम जब आप भरोगे तो आपको प्रीवियस ईयर का टर्नओवर भरना है। अगर आपका प्रीवियस ईयर टर्नओवर सिस्टम के पास एक बार आ गया देन इट विल प्रॉम्प्ट यू कि आपका 50 लाख का टर्नओवर है, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। आपका 1.5 करोड़ का ऊपर है, यू नीड टू फाइल 2 डिजिट HSN, या अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 4 डिजिट का HSN। ऑफकोर्स अभी HSN पे थोड़ा रीथिंकिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी इज़ नॉट वेरी फेमिलियर विथ HSN थिंग। तो हो सकता है कि इन द इनिशियल ईयर ये सिर्फ फील्ड रहेगा, मे बी मैंडेटरी हटा देंगे। अगर आप भरेंगे तो अच्छा है, नहीं भरेंगे तो भी सिस्टम विल एक्सेप्ट, थिंग्स विल हैपन। एट द सेम टाइम ये जो रेट शेड्यूल बन रहा है दैट इज ऑल्सो HSN बेस्ड। तो देर आर फ्यूचर प्लान्स लाइक वंस यू पुट हियर HSN कोड तो आगे आपको टैक्स रेट डालने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स रेट विल बी ऑटो पॉपुलेट। तो ये सब है सिस्टम में। अब वो कब से लागू करना है, क्या शुरू करना है, वो थोड़ा सा उस पर अभी भी डिसीजन होना बाकी है, तो वो हो जाएगा। देन यू पुट योर दिस इज इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, तो CGST SGST आएगा, सेस आएंगे। दिस इज योर 1 लाइन आइटम। इफ़ यू हैव मोर देन यू नीड टू ऐड दिस। ऐड करने के बाद अगर इफ़ यू हैव अनदर लाइन आइटम इट विल टेक यू टू दैट स्क्रीन, यू ऐड अनदर लाइन आइटम। जो पहले लाइन आइटम ऐड किया है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा। यू कैन गो बैक, क्योंकि आपका इनवॉइस नंबर और वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यू जस्ट नीड टू ऐड योर 2nd लाइन आइटम और 3rd लाइन आइटम। तो ये लाइन आइटम आप यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। जब आप ये लाइन आइटम ऐड करते हो एंड यू आर कमिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, एंड इफ यू फील कि कुछ गलत हुआ है देन यू हैव ऑप्शंस लाइक एडिट एंड डिलीट। तो आप एडिशन और डिलीशन के ये ऑप्शंस भी यूटिलाइज कर सकते हो। एक बार आपका इनवॉइस प्रिपेयर हो गया देन यू कैन सेव दैट इनवॉइस। सो अभी मैंने बीच वाले सब स्टेप्स निकाल दिए, GSTR 2, 2A, 1A। नाउ वी आर गोइंग डायरेक्टली टू GSTR 2। सो GSTR 2 आपका कैसे तैयार होगा? सो यू कैन सी हियर आपका B2B इनवॉइसेस है, इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है, जितना भी है वो सब आपको इंपोर्ट्स यहाँ पे दिखेगा। देन उसके साथ में आपको यहाँ पे कॉलम्स है कि आपको इसका ITC एलिजिबल है क्या। एलिजिबल है तो मतलब एलिजिबल क्यों है कि ये डिनायल में नहीं है, इसलिए आई एम एलिजिबल फॉर दैट ITC। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। अलाउएबल है क्या? अलाउएबल कब होगा कि गुड्स मुझे रिसीव हुए, ये सिर्फ एडवांस नहीं है, एडवांस पे है बट मुझे जब गुड्स रिसीव होंगे तब करना है। तो यहाँ पे मुझे एलिजिबल है बट नॉट अलाउएबल। सो ये सब आपको यहाँ पे बताना है कि इस पर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम कर रहा हूँ, या दैट विल रिमेन इन सिस्टम, वो मेरे लेजर अकाउंट में रहेगा। लेजर अकाउंट पे हम लोग देखेंगे। सो वो मेरे लेजर अकाउंट में रहेगा, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन सब्सिक्वेंट रिटर्न पीरियड्स।
तो ये सब आपको यहाँ करेंगे। ये सब करने के बाद ये आपका एक्चुअली बल्क अपलोड, मतलब परचेस का बल्क वेरिफिकेशन अगर आपको करना है तो जैसे सेल का भी आप बल्क अपलोड कर सकते हो, तो वैसे देर आर रिक्वायरमेंट्स के आई हैव एन नंबर ऑफ डीलर्स, मतलब टेल्को आई हमारे पास, वो बोली यार मेरे पास तो 10,000 वेंडर्स है, 10,000 वेंडर से मैं कुछ ना कुछ माल एवरी मंथ लूंगा, तो अगर 10,000 का मैं बैठ के मैन्युअली करूँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मुझे परचेस का भी वेरिफिकेशन बल्क फैसिलिटी से करना आना चाहिए, तो उसके लिए भी यूटिलिटीज़ बनाई हुई है, वो दैट विल बी अवेलेबल टू यू ऑन GSTN, वेर यू जस्ट बल्क वेरिफिकेशन परचेस का भी हो जाएगा। सो वो हो जाएगा, बट इंडिविजुअली करना है आपको तो यहाँ पे चेक बॉक्सेस है, आप चेक कर सकते हो कि दिस इज एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, या ये रिजेक्टेड है ये रिजेक्टेड है। अगर आपको मॉडिफाई करना है सेम इनवॉइस तो यहाँ पे है, यू कैन एडिट इट एंड मॉडिफाई इट। तो ये सब यहाँ पे होने वाला है। बाद में GSTR 2 आप फाइल करोगे तो ये आपको पूछेगा कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड। नाउ आपका GSTR 2 रेडी तो हो गया, बट यू हैव टू फाइल इट। जैसे मैंने बोला कि ये एवरी रिटर्न के लिए GSTR 1 हो 2 हो 3 हो, किसी भी इसके लिए इट्स अ 2 स्टेप प्रोसीजर। तो सेकंड स्टेप आपको जाना है कि वेदर यू आर रेडी विथ फाइलिंग, नाउ यू फाइल द रिटर्न। जब आप फाइल करोगे उसके बाद ही आपका GSTR 2 फाइल हो जाएगा और उसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। सो ये एक्नॉलेजमेंट आपको मिला GSTR 2 का। GSTR आपका 1 हो गया, 2 हो गया, now आपको GSTR 3 बनाना है। आप अगर देखोगे तो यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन अपलोड वगैरह ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है कि जनरेट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है वहाँ पे, बिकॉज ऑल द डेटा यू हैव ऑलरेडी। सो आपको अगर लगता है कि मेरा 1 का कंप्लायंस है, 2 का कंप्लायंस है, बट आपका कंप्लायंस सिर्फ जाके टिक करना यहीं तक है, सिस्टम इज सपोर्टिंग यू अ लॉट। सो इस हिसाब से, एंड आपको ये जो अलर्ट्स भी है वो भी सिस्टम देती रहेगी। अगर ये यहाँ पे वो डेवलपमेंट के स्टेज का था इसलिए एरर है, ये जैन का रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 10th में, बट जैन का रिटर्न है तो इट विल शो यू 10th February इज द ड्यू डेट, 15th February इज द ड्यू डेट फॉर GSTR 2 एंड 20th। सो ये सब सिस्टम, एंड इसके हिसाब से आपको अलर्ट्स आते रहेंगे, मैसेजेस आते रहेंगे। सो दिस इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय द सिस्टम। सो आप GSTR 3 जनरेट करोगे, यहाँ पे आपका टर्नओवर डिटेल्स है, आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज, टैक्स लायबिलिटी, TDS क्रेडिट, TCS क्रेडिट, आपने कितना पे किया है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। यू कैन व्यू दिस इन, क्योंकि वी आर फैमिलियर विथ करंट, ये अब ये बॉक्स सिस्टम से हम लोग अभी तक फैमिलियर नहीं हुए। सो इफ़ यू वांट टू सी इट टोटलिटी में कि मेरा इंटरस्टेट सप्लाई कितना है, इंट्रास्टेट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, तो ये आप समराइज फॉर्मेट में भी देख सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू यू। जैसा ये है आउटवर्ड सप्लाईज, इन द सेम वे इनवर्ड सप्लाईज है, फिर टैक्स लेजर है, यहाँ पे ITC रिवर्सल जो मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली रिवर्सल होने वाला है। तो यहाँ पे ITC रिवर्स कितना है ये सब सिस्टम कैलकुलेट करेगी एंड आपको वो उसका रिजल्ट्स देगी। सो दिस वाज जस्ट जनरली ओवरव्यू ऑफ रिटर्न कैसे होंगे एंड वो आप मैचिंग मिसमैचिंग का कैसे होगा। जस्ट 2 more slides आई वांट टू शेयर। वन इज मिसमैच रिपोर्ट हम लोगों ने देखा, ये आप दिस इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कैश, देर आर 3 लेजर्स इन GST। वन इज टैक्स लेजर, ITC लेजर एंड कैश लेजर। सो टैक्स लेजर में आपका टैक्स लायबिलिटी होगा, बाय वे ऑफ रिटर्न होगा, बाय वे ऑफ असेसमेंट होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी वे से होगा आपका जितना भी टैक्स लायबिलिटी जनरेट हुआ है वही आपको टैक्स लेजर में दिखेगा। ITC लेजर में क्या दिखेगा आपको, जितना भी ITC आपको ट्रांसफ़र किया है। अभी वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने क्लेम किया हुआ होगा, सामने ने पास ऑन नहीं किया, बट आपने क्लेम किया, वो आपको दिखेगा एज अ प्रोविजनल, या उसने सामने वाले ने भेज दिया है बट आपने अभी तक उसको बुक नहीं किया है। सो ये सब आपके लेजर अकाउंट में पड़ा रहेगा। यू कैन सी इट, दिस इज़ माई क्रेडिट। अब मुझे वो कब क्लेम करना है वो मुझे डिसाइड करना है, बट उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। और कैश लेजर में क्या होगा, कैश लेजर में आप जितना भी कैश भरोगे वो रहेगा, प्लस आपका TDS एंड TCS का क्रेडिट, दैट विल ऑल गो टू कैश लेजर। ये लेजर का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मैं उसका फंड्स कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। जो ITC लेजर में मेरे बैलेंस पड़ा हुआ है, आई कैन यूटिलाइज दैट बैलेंस ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड नथिंग एल्स। कैश लेजर में जितना भी बैलेंस है, आई कैन यूटिलाइज दैट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट,
पेनल्टी, फीस और एनी अदर पेमेंट, लाइक आपका असेसमेंट ड्यूज है उसको भरना है, आपका अपील का पार्ट पेमेंट है उसको भरना है, तो कोई भी पेमेंट होगा दैट यू कैन पे थ्रू योर लेजर का बैलेंस जो है आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या यू कैन क्लेम इट एज अ रिफंड। बट रिफंड आपको आईटीसी का सिर्फ दो ही सिचुएशन में मिलेगा, वन इज एक्सपोर्ट आउट ऑफ कंट्री एंड सेकंड इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप आईटीसी लेजर का जो भी आपका बैलेंस है उसको आप रिफंड ले सकते हो। कैश के लिए ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपका टीसीएस है, टीडीएस है, आपके अकाउंट में आया है एंड यू वांट टू क्लेम इट एज अ रिफंड, यू कैन ऑलवेज क्लेम दैट। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ये कैश लेजर में? कैश लेजर में डेट ऑफ इट वर्क्स लाइक ई वॉलेट। आपके ई वॉलेट में आपने पैसा डाल दिया है, बट जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करते तब तक इट इज़ नॉट रिलेवेंट। जब तक आप वो पैसा आपके रिटर्न या कोई पेमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते तब तक वो आपके वॉलेट में पड़ा है, बट दैट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड। सो डेट ऑफ डिपॉजिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्यू डेट 20 तारीख है रिटर्न GSTR 3 फाइल करने का, आपने 22 तारीख को कर दिया, सो यू हैव फाइल्ड इट 2 days लेट। आपका जो भी लायबिलिटी है, आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, फिर भी आपने वो यूटिलाइज कब किया? 22 तारीख को। इट इज़ 2 days लेट, सो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। सो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ कैश लेजर। आप कब यूटिलाइज करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। बाकी ठीक है, वी विल स्किप, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 9:30, सो आई थिंक वी शुड वेट, स्टॉप हियर एंड take some of your questions. But majority, this is how the GSTN will work: returns, matching, mismatching, reversal of credit. So ये है। इसके लिए we also need a very ये हम लोगों ने काफ़ी सारा skip किया because GST IT strategy is really very technical. But you can see this is the load that system is going to take. 70 to 80 lakh taxpayers, 300 crores B2B इनवॉइस लेवल डेटा पर मंथ, एंड इतने सारे लोग उस पर काम कर रहेंगे। सो वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग IT बैकबोन टू मेक इट अ सक्सेस। एंड वो कर रहे हैं, मतलब जितना भी सिस्टम हम लोगों ने चेक किया है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन। कुछ है जो टेक्निकल एरर्स है या कुछ वैलिडेशंस डालना है, वो सजेशंस भी दिए हुए हैं। सो दे आर मूविंग अकॉर्डिंगली, बट इट शुड बी in place very soon. So I think we'll stop. Thank you.